सो हेलो गाइस, वेलकम टू ई मोबिलिटी सिस्टम लैब। और आज हम बात करेंगे फंक्शंस के ऊपर। बेसिकली दिस इज़ द थर्ड क्लास ऑन द फंक्शन। और आज हम सारी चीज़ों को समझेंगे कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू, प्रैक्टिस के साथ बेसिकली। ओके, सो सबसे पहले जो भी कोडिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बेसिकली दे वी आर हैविंग ऑनलाइन कंपाइलर्स। जीडीबी कंपाइलर इज़ द बेस्ट फॉर द सी प्रोग्रामिंग। आप इसको डायरेक्ट क्रोम पर सर्च करके इधर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, फंक्शंस में क्या है, हमें कमेंट्स को समझना है। So there are two kinds of comment. C programming. First is single line comment, okay, and another is a multi-line comment. So this one is single line comment. Single line comment क्या होता है? If you want to comment only one line, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये जो लाइन है हमारा कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट ना करे, तो हम क्या करेंगे, उसको कमेंट कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है, मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करेंगे। सो मल्टी लाइन कमेंट्स लिखा कैसे जाता है? सो दिस इज द सिंटेक्स टू राइट द मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है। सो जब भी आप इस अब कुछ भी लिखेंगे, देन हमारा जो कंपाइलर है इनको एग्जीक्यूट नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कमेंट हम क्यों लिखते हैं? बेसिकली कमेंट हमारा जो कोड होता है उसको रीड, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है। क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, हमें उसको रीड करना होता है। और आप कुछ दिन के बाद अगर आप कमेंट नहीं डालेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, आपका मैनेजर नहीं समझ पाएगा आपने क्या लिखा है। और कुछ दिन के बाद आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि आपने क्या लिखा है। सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड what you have written in the past. Okay, so just to understand, to make your program readability, to increase the readability of your program, you have to write down the comments. Either you will use multi-line comments or single line comments. So after the comments, you need to understand some other concepts. So basically, these are the some kind of symbols. Okay, brackets you need to understand. So here you are able to see first one. So what we call, sometimes we don't understand what is this, what we should call it. Okay, so this is called parenthesis, or you can call it a round brackets. So similarly, this bracket is called curly braces. Okay, and this is called square bracket. And this kind of syntax, or this kind of symbol is called angle brackets. Okay, so now you are aware of the comments, you are aware of the brackets, or you are aware of the symbols basically, which are highly useful in the programming. So I would say to comment it, to comment all these four lines, how would you comment it? So you will use multi-line comments. Okay, so understand how the multi-line comments are written basically. So now we have commented all these four lines. Okay, so after understanding these important symbols, now we understand what is the difference between parameters and arguments. Okay, so here, because in function we will multiple time use the parameters and arguments. Okay, otherwise there is no meaning of the functions without parameters and the arguments. Okay, these are the important factors of the functions. So first of all, you need to understand what are the parameters, what are the arguments. Sometimes people get confused. So parameters are the variables declared inside the function definition. Okay, so इसको हम प्रॉपर कोड के साथ समझेंगे। अभी सिर्फ आप इस डेफिनेशन को याद रखें। एंड दे एक्ट एज अ प्लेस होल्डर टू रिसीव डेटा। प्लेस होल्डर का क्या मतलब है? और यू कैन से द कंटेनर, और दे विल रिसीव सम डेटा बेसिकली, जहाँ पर आप अपने डेटा को स्टोर करेंगे। सो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ प्लेस होल्डर. Okay, so and these parameters are written inside the parenthesis. Okay, so all this we will see through the program. After the parameter, we will understand the arguments. Okay, so arguments क्या होते हैं? Arguments are the actual values passed to the function when it is called. जब भी हम function को call करेंगे, तब जो भी प्लेस होल्डर है या जो भी फंक्शन है उसके अंदर हम एक्चुअल वैल्यूज को पास करेंगे, and they provide the real data to the functions. Okay, so they are written inside the parenthesis during the function call. Okay, so let's see one example on this. Okay,
So first of all, we would include the library, standard input output library. Okay guys, so this is not working basically. I think we have commented it somewhere. Okay, so now see where we have commented it. I think everything is commented. Okay, so let's see. Okay, I think here is the issue basically. Okay, now we will comment it again. Okay, yes. So now here you are able to see the color has been changed. It means these lines are out of the command now. Okay, so first of all, we will see how the parameters, how the arguments are written basically. So let's see. First of all, we would include one library, standard input output library, and then we will create one function of a add name. So this is the add type function, int a and int b. Okay, so basically this is called the function declaration. Okay, and फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड राइट दी सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन. हमें सबसे पहला जो फोकस है वो क्या है, जब भी हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उसका जो सिंटैक्स होगा वो कैसा होगा. सबसे पहले हम सिंटैक्स लिखेंगे. जब भी हम सिंटैक्स सबसे पहले और हाई प्रायोरिटी पर रखेंगे तो गलतियां कम होंगी. सो इधर हम कमेंट लिखेंगे. सो ए एंड बी आर दी. तो अभी हमने क्या बात की, पैरामीटर्स को समझा, आर्ग्यूमेंट्स को समझा, ठीक है. और अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स को कैसे लिखा जाता है. लेट्स कमेंट आउट दिस. ओके, सो इधर हम एक प्रोग्राम देख पा रहे हैं. तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है. सो बेसिकली जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ये जो लाइब्रेरी है आपको हमेशा इंक्लूड करनी पड़ेगी. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी. तो बेसिकली दिस इज स्टैंडर्ड. इसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं, बेसिकली जो भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी फंक्शंस यूज़ करेंगे, जैसे कि प्रिंट एफ हो गया, रिटर्न हो गया, इंट मेन हो गया, तो ये दीज आर द फंक्शंस. तो इनका जो भी कोड पहले से स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर पहले से अवेलेबल है. पहले से जिसने भी कोडिंग बनाई है उसने पहले से ये जो पीछे का जो भी लॉजिक्स है, फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, उनका जो भी लॉजिक्स है, उनकी जो भी कोडिंग है, वो पहले से लाइब्रेरी के अंदर उन्होंने ऐड करके रखा है. हम क्या करते हैं, हम उस लाइब्रेरी को सिर्फ कॉल करेंगे और वो जो भी इनबिल्ट फंक्शंस है उनका यूज़ करेंगे. ठीक है, और हम अपना प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम राइट करेंगे. तो अभी इस प्रोग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कैसे लिखना है. तो पहले सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया है इंटीजर टाइप का. टाइप ऑफ द फंक्शन क्या है, इंटीजर. ठीक है, और हम ये जो फंक्शन है इसका टास्क क्या है, जैसा कि हमने बात की थी इससे पहली वाली वीडियोस में कि फंक्शंस हम क्यों बनाते हैं. फंक्शंस बेसिकली कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं कोडिंग के अंदर. ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है. इसका कर रहा है एडिशन. दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, या ये जो हमने दो पैरामीटर्स लिए हैं, इधर पैरामीटर्स लिए हैं, इधर ए एंड बी. पैरामीटर्स आर नथिंग बेसिकली द वेरिएबल्स. और जैसा कि हम इधर थ्योरी में देखा था, प्लेस होल्डर्स जो कि कुछ डेटा को होल्ड करेंगे या रिसीव करेंगे, जहाँ पर हम अपना डेटा और आर्ग्यूमेंट्स. और आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एक्चुअल जो भी डेटा है ना उसको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, गॉट इट. तो बाद में हमने जैसे ही हमने लिखा इसकी क्लोजिंग की. और जब भी आप फंक्शन लिख रहे हैं या कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप याद रखिए सिंटैक्स क्या होता है. सो यू गाइस ऑलवेज नीड टू रिमेंबर द सिंटैक्स ऑफ द, जो सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन, सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्राम. तो दिस प्रोग्राम विल क्लोज बाय यूजिंग द कर्ली ब्रैकेट्स. और हमें क्या चाहिए, रिटर्न. कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा. अब क्या करेगा, इन एडिशन ऑफ वेरिएबल ए एंड बी. अब हम क्या करेंगे, एक इंटीजर मेन फंक्शन लिखेंगे. इंट मेन नाम का एक फंक्शन है. बेसिकली दिस इज द एंट्री पॉइंट. इंट मेन
इज दैट पॉइंट जहाँ से हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है. तो बेसिकली फ्रॉम वेयर अवर प्रोग्राम और अगर अवर कंपाइलर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम. So here we have taken one variable. The variable name is result. So the type of this variable is integer type, and it will hold some value. It will store some value basically, or it will store some addition. इधर हमने क्या किया है, आर्ग्यूमेंट पास किया है, और ये जो आर्ग्यूमेंट पास हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, पैरामीटर्स के अंदर पास हुआ है. ठीक है, इतना हुआ. और इधर क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. देन जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे दोनों वैल्यू प्लस होंगी, और प्लस होने के बाद जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विल स्टोर इनटू द रिजल्ट वेरिएबल. अब हमें देखना है कि वो रिजल्ट के अंदर कौन सी वैल्यू, एडिशन होने के बाद क्या वैल्यू, या जो भी एडिशन हुआ है क्या हम उसको देख पाएंगे कंसोल पर. उसका हम कैसे पता करें कि एक्चुअल में एडिशन हुआ है नहीं हुआ. क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको मैं क्या करूँगा, कंसोल पर प्रिंट कराऊंगा. तो कंसोल पे जब भी हम कोई भी चीज़ प्रिंट कराते हैं, बेसिकली जब भी हमें कुछ आउटपुट चाहिए किसी वेरिएबल, तो हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे. वी विल यूज़ वन फंक्शन टू गेट द आउटपुट ऑन द कंसोल, दैट इज प्रिंट. तो, तो हमने क्या किया, हमने इसका सिंटेक्स बनाया. सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट का सिंटेक्स बनाया. तो उसके अंदर हमने आइडेंटिफायर डिसाइड किया, क्योंकि हमारा जो भी एडिशन होगा वो इंटीजर टाइप का. सो परसेंटेज डी आइडेंटिफायर यूज फॉर द इंटीजर टाइप वैल्यूज, एंड हियर वी विल पास द वेरिएबल. तो नाउ वी विल रन दिस कोड. इस कोड को अपना कमेंट कर देते हैं. रन दिस कोड. जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी क्या मिला है, हमें 30 मिला है. तब क्या, जो भी एडिशन रिजल्ट के अंदर स्टोर हुआ है वो हमें कंसोल पे अभी दिख रहा है 30. ओके. तो गाइस, वी लर्न सो मैनी कॉन्सेप्ट्स इन फंक्शंस, पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, एंड पैरेंथेसिस वगैरह है, ब्रैकेट्स, जो एंगल ब्रैकेट्स हैं वो सारा कुछ समझा. आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. Hello world. And basically this is statement, and we would use the semicolon here, because कि हमने देखा है, हमने पढ़ा है सी प्रोग्रामिंग में कि हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा वो सेमीकोलन से एंड होगा. अभी हमें क्या करना है, ये जो हेलो ऑफ नाम का जो फंक्शन बनाया है, सो वी विल कॉल इट इन इनसाइड द मेन फंक्शन. ओके. हम क्या करेंगे, इसको अभी कॉल करेंगे. ओके. और ये जो ऊपर का फंक्शन है इसको क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे. Now we will run this. So here you are able to see hello world. हमने क्या किया, so हमने क्या किया, जैसे ही हमने रन किया then we would have some output here. So basically int main is the entry point. हमारा जो फंक्शन स्टार्ट होगा वो int main से स्टार्ट होगा. देन इट विल कॉल टू हेलो वर्ल्ड. हेलो बेसिकली इस फंक्शन को कॉल करेगा, और इस फंक्शन को जब ये कॉल करेगा तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे और हमें आउटपुट मिलेगा. सो बेसिकली, so first of all, we would include one library here, standard input output library. Then we will create one function named hello, and we will write some statements. We will write hello world, and inside the main function, we would call this hello function as much as or as many as times. Many times you can call it without any uh, any issue. You can call. So suppose अभी मैंने क्या किया है, एक ही बार कॉल किया है. आई कैन कॉल इट मल्टीपल टाइम्स, लाइक हेलो अगेन. सो यू विल गेट आउटपुट टू टाइम्स. हियर इज द मिस्टेक बेसिकली. अगेन you will get the same output.
तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगला जो फंक्शन है के लिए हमने इसको क्या किया है, 2 बार कॉल किया है तो हमें 2 बार आउटपुट। फिर हम एक न्यू लाइन लगा देंगे। सब क्लियर हो जाएगा, आसानी होगी। तो इधर हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं हेलो वर्ल्ड, बार प्रिंट। तो गाइज आज की वीडियो को हम इधर ही एंड करेंगे, और आज हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात की, इससे प्रोग्राम भी किया, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जो अगले जो टाइप्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में बात, प्रोग्राम्स वगैरह। थैंक यू गाइस।